Jai Hind and welcome to the class. Today we are going to conduct the D&D in a new manner and perhaps this will be the new normal. Now, Jash plot to target democratic exercise in JNK foil, says Prime Minister. So अभी recently जो attack हुआ है 2 दिन पहले चेक पोस्ट पे जहाँ पे you were seeing that encounter was held between the terrorists and the government. वहाँ पे consistently we were seeing that लगातार उन्हें external support मिल रहा था. उनके पास satellite phones and everything were there. Plus काफ़ी SMS वगैरह मिले हैं उनके पास में जहाँ से पता लगता है कि they were motivated by some country from the across the borders. Now you know which country we are talking about. Definitely it's Pakistan. No other country is that interested in spreading terrorism. Second thing, UP government denies confining Kerala journalist illegally. अब केरल के एक जर्नलिस्ट को यहाँ यूपी में कन्फाइन किया हुआ है, मिस्टर सिद्दीकी कप्पन. It was claimed that he is being detained illegally, but UP government has come out saying that no, we are not detaining him illegally. He has been trying to create a kind of caste divide in Hathras. Now recently Hathras was in news when a girl was raped and allegedly raped, and thereafter a lot many things happened in that area. ठीक है, she was cremated that very night after she died in the hospital. So she was cremated that very night without even allowing anybody from her family, and many things came out, a drama foiled completely. But you can see that right now the case is far from over. We are seeing that journalists are being held. No questions on to whether it is a violation of Article 19, which is freedom of press, or whether it is a genuine exercise and the person in question committed any kind of caste divide. Whatever happens, you'll come to know in the due course of time. Next news is not for fresh contempt against comedian. Now as you know, contempt की जो power होती है कोर्ट की, it is available with higher judiciary in India. Higher judiciary का मतलब होता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की पावर आती है आर्टिकल 129 में, हाई कोर्ट की पावर आती है 215 में. नाउ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कई बार ऐसा होता है, दो अलग अलग टाइप के आपके पास कंटेम्प्ट होते हैं. फर्स्ट कंटेम्प्ट इज व्हेन क्या बोलते हैं उसको, सिविल कंटेम्प्ट होता है, व्हेन यू आर विलफुली डिनाइंग टू ओबे एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. एंड देन देयर इज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट. क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू विलीफाई द जुडिशरी. आप जुडिशरी की इंटेग्रिटी पे या इस टाइप से कोई क्वेश्चन रेज करते हो. नाउ मिस्टर कुणाल कामरा जो है, जो खुद को बहुत बड़े आजकल पॉलिटिकल पंडित समझने लगे हैं, एग्जैक्टली दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसकी वजह से कंटेम्प्ट की पावर्स रह जाती हैं. आपको करना है क्रिटिसाइज, आप एक तमीज की लैंग्वेज के साथ में प्रॉपर टाइप क्रिटिसाइज कर सकते हैं. एंड फनी थिंग इज दैट आउटसाइडर्स हैड डिमांडेड द जुडिशरी टू इशू कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने केवल अपनी परमिशन दी थी कि यस, कंटेम्प्ट शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम. In that he has waged an all-out war against the judiciary, and he has recently put image of one of the judges जहाँ पे उन्होंने 2-3 अपने हाथ की उंगलियां दिखाई हैं जिसमें लिखा है कि he meant the middle one. Obviously this is something which is unacceptable when you are talking about the judiciary of the country, and indeed this kind of criticism is not criticism per se. ये तो भाई publicity stunt हुआ. क्रिटिसाइज करना है तो आप जेन्युइन ग्राउंड्स पे करिए, एनजेएसी को लेके करिए, या किसी केस में कुछ चल रहा हो तो उस चीज़ को लेके कर सकते हैं. बट ये क्रिटिसिज्म इज समथिंग, यहाँ पे आके फिर आई लीव हैंड्स विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इज कम्प्लीटली अ विलीफाइड एक्सरसाइज जहाँ पे आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की इज्जत नहीं करना चाहते हो. जस्ट बिकॉज इट्स गवर्नमेंट इट्स बैड इज द काइंड ऑफ आइडियोलॉजी यू आर फॉलोइंग. नेक्स्ट पॉइंट इज भूटान सेज नो चाइनीज विलेज ऑन इट्स टेरिटरी. अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिकॉज कई मीडिया हाउसेस बोल रहे थे कि चाइना ने नेपाल में, भूटान में अपने विलेजेस बना डाले हैं. इट्स नॉट राइट. भूटान हैज कैटेगोरिकली डिनाइड एनी सच क्लेम्स एंड हैज सेड दैट दीज आर इनकरेक्ट मीडिया रिपोर्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज हरियाणा शट्स ऑल स्कूल्स टिल November 30 एंड दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग न्यूज़. कारण क्या है, हरियाणा में जब अभी स्कूल खुले, यू विल सी ऑन टू द नेक्स्ट पेज दैट स्कूल्स खुलने के बाद में व्हाट हैपेंड वाज अराउंड 100 किड्स जो थे वो इन्फेक्ट हो गए थे. आगे वाले किसी पेज पे आएगी ये खबर भी. सो इन दैट यू विल रियलाइज दैट जब एक साथ इतने बच्चों को कोविड हो जाता है तो दीज चिल्ड्रन विल ऑल्सो गो बैक देयर होम्स. एंड बच्चे हैं तो पेरेंट्स ऐसा भी नहीं है कि उनको छूने से टच मी नॉट वाली फीलिंग ले लेंगे कि निकालो इनको, इनको नहीं छूना है हमें. सो दैट इज वाई इट हैज बिकम अ मेजर कंसर्न दैट दीज किड्स विल गो बैक होम. द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन टू द पेरेंट्स इज वेरी हाई. And eventually Haryana government has decided that the schools will be shut, they will be sanitized and they will reopen in December. Again, an exercise which will be only effective if next time also we are able to take the precautions adequately. Next important news is about the plea seeking review of order on cigarette butts.
Now, National Greens Tribunal has dismissed a plea which was recently moved by the Federation of All India Farmers Associations, which sought a review of the Center Pollution Control Board के order का that said कि cigarette और बीड़ी के जो butts होते हैं उनको इनकी responsibility है that they need to be handled carefully. Now you should see how politics, or let's say pressure group politics, is working in this sense. What are pressure groups? Pressure groups are groups of people या किसी भी एक पर्टिकुलर मोटिव से बने हुए ग्रुप होते हैं जो सरकार को और सरकार की पॉलिसी को एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं. जनरली दैट इज फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग. जैसे फिक्की नाम सुना होगा तुमने. फिक्की इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. दैट वे बहुत सारे और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे एनजीओस भी कई बार प्रेशर ग्रुप्स के कैटेगरी में आते हैं, ग्रीन पीस एक्सेट्रा. तो ये सारे ग्रुप्स हैं जो अपने अपने किसी एक पर्टिकुलर मोटिव के साथ में आगे काम करते हैं और सरकार की पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं. नाउ प्राइमा फेसी, एज द नेम सजेस्ट्स, ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन शुड बी फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द फार्मर्स. बट ये किसके लिए फाइट कर रहा है? सिगरेट इंडस्ट्री के राइट्स के लिए. इंडस्ट्री में आपको शायद पता हो कि जो सिगरेट बट्स होते हैं इनका डिस्पोजल इज अ मेजर कंसर्न व्हेन इट कम्स टू लैंड पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं सिगरेट बट्स, बिकॉज दे जस्ट डोंट डिग्रेड दैट इजी. ठीक है, फाइबर्स यूज होते हैं उनमें, नेचुरल फाइबर्स ऑब्वियसली नहीं यूज करेंगे, कॉस्टली होता है, दैट इज वाई. सो ये एक मेजर कंसर्न क्रिएट हुआ कि सिगरेट बट्स को भी डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, बट डिस्पोजल वॉज नॉट अवेलेबल. सो वॉट टू डू इन दैट केस? बनाओ एक नया चेंबर और उसके साथ में सरकार पे दबाव बनाना शुरू करो कि आपकी पॉलिसी गलत है डिस्पोजल की. गवर्नमेंट वाज राइट इन सेइंग दैट दीस पीपल हैव टू टेक केयर ऑफ द सिगरेट बट्स. नाउ दे आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट. लेट्स सी हाउ फार दिस ड्रैग्स. बट अगेन दिस मूव इज नॉट फॉर द सेक ऑफ द फार्मर्स बट फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री. सो दैट इज वन थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड्स व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग दैट. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, लोडिंग. ठीक है, ये तो सब पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, यू कैन सिंपली इग्नोर देम कम्प्लीटली. एक ये अच्छी खबर थी बट आई डोंट थिंक इट्स ऑफ एनी हाई रेलेवेंस. हियर इट इज सेइंग दैट इन ओडिशा राइडर्स विदाउट हेलमेट विल लूज देयर लाइसेंस. ठीक है, सो यू कैन क्लेम जब भी आप अगर आपका ऐसे आ जाता है इन CAPF पेपर विच इज आस्किंग यू टू मेक एनी रीमार्क ऑन टू दैट पार्ट वेयर द न्यू MV Act is being questioned. The MV Act, which is the Motor Vehicle Act, if it is being questioned and it is said that people are being fined to a very high amount and the stringent procedures have been adopted this time, you can say that there have obviously been cases which have led to the loss of life and kind, and that is why government has to take stern action and has to make it mandatory. Also, if fines are not feasible, you can do one thing, you can simply cancel the license of those people who are repeat offenders. For example, in the state of Odisha, riders without helmet will lose their license if they are caught for multiple offences. इस तरीके से कि पहले 3 महीने के लिए सस्पेंड करा, उसके बाद पहले मतलब 1000 रुपए का फाइन, फिर 3 महीने का सस्पेंशन एंड फाइनली रिवोक कर दिया लाइसेंस. तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेंशन्ड अगर आपका ऐसे आता है वहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अगेन मेजरली पॉलिटिकल न्यूज ऑन टू द पेपर. डोंट हैव टू गो अहेड एंड डिस्कस देम इन डिटेल. नाउ यू कैन सी यहाँ पे पेपर में आपके पॉल्यूशन के, यहाँ ध्यान से देखो तो एयर क्वालिटी कोड्स वगैरह भी सब देते हैं लोग. तो ये कलर कोडिंग वगैरह याद रखना और देखना कौन कौन सी गैसेस होती हैं एयर पॉल्यूशन में. एवरी सिंगल डे इट इज बीइंग पब्लिश्ड इन द पेपर, सो आई बिलीव यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज दैट नवी मुंबई पुलिस जेस्चर विंस प्रेज. हुआ क्या है रिसेंटली, नवी मुंबई की जो पुलिस है, it has reached certain underprivileged children and it has provided them with books and other essentials which are important for their education and survival. Now everybody takes care of the poor and everyone, but often those people, often those children who are not taken care of by anyone in the routine time also go unnoticed during the time of any crisis. So Mumbai पुलिस का जो ये gesture है जहाँ पे crisis के time पे they are providing support to these kids is actually appreciable and laudable. ठीक है, गुड गवर्नेंस में यू कैन मेंशन दीज. यक्ष प्रश्न आपके एडिटोरियल्स होंगे या नहीं, एडिटोरियल्स होंगे और देखो कितने आसानी से कवर हो जाए. वैसे आई वाज जस्ट टेकिंग अ लुक एट दिस इमेज. सी, बाकी सब चीजें ठीक हैं बट जस्ट टेक अ लुक एट दिस इमेज. देयर इज वन प्रॉब्लम विद इट. एक स्कूल में मिलिट्री की प्रेजेंस. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट करंट सिचुएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऐसी है कि वहां पे बिना मिलिट्री के आप क्लासेस कंडक्ट करा लो या कुछ भी. But believe me that this is also not the way which we are expected to work, and in times to come
Now that 370 has been revoked and the new normal might be restored back to Jammu and Kashmir, it would give a very healthy picture. अगर next time हम लोग इस टाइप से किसी मदरसे या स्कूल की तरफ देख रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ बच्चे खेल रहे हो, ना कि सिक्योरिटी पर्सनल खड़े हुए हो. So then this in itself would be a great achievement for us, and that's what we should aim and strive for. Next point पे आते हैं. Now these are again political news. इस पेज पे एक न्यूज़ है, डिजिटल हेल्थ मिशन रेडी फॉर नेशन वाइड रोल आउट सून. Now if you remember, मोदी जी ने बोला था कुछ टाइम पहले कि आपकी एक नेशनल हेल्थ आईडी बन जाएगी, एक पूरा हेल्थ मैट्रिक्स तैयार करेंगे यहाँ पे, है ना. सो ऑल दोज थिंग्स आर वर्किंग. एक डिजिटल हेल्थ मिशन की तैयारी करी जा रही है एंड वेरी सून इट विल बी रोल्ड आउट इन द एंटायर कंट्री. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई टू टारगेट द पीपल हु आर मोस्ट वल्नरेबल. जैसे यू एंड आई, वी कैन अफोर्ड आवर ओन हेल्थ केयर. हम अपने पैसे खर्च करके थोड़ी बहुत दवा खरीद सकते हैं. बट देयर आर मेनी पीपल हु रियली कैन नॉट. जैसे तो मैं एक उदाहरण देता हूँ. इंडिया की पॉवर्टी लाइन आप सुनते हो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की लाइन इज $1.9 अ डे. अगर कमा रहा है कोई तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है. बट दैट इनकम गाइडलाइन इज एप्लीकेबल टू दोज कंट्रीज विद लो इनकम. इंडिया इज नो लॉन्गर अ लो इनकम कंट्री. इंडिया इज अ लो मीडियम इनकम कंट्री. और लो मीडियम कंट्री जब बन गए हैं हम लोग इनकम वाली, तो हमारी जो पॉवर्टी लाइन है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट अराउंड $3.20. 1.9 से बढ़ के 3.2 तक पहुंच चुकी है हमारी. इन दिस केस देयर आर मेनी पीपल हु स्टैंड बिटवीन 1.9 to 3.2. Almost 40% population of the country stands in that bracket. So you can see that there are many people who can simply come back into the abject poverty वाला line, अगर उनके ऊपर एक भी एक्स्ट्रा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पड़ जाए. इसीलिए कहा जाता है कि कई ऐसे गरीब होते हैं जो गरीबी से निकल पाते हैं, तब तक health burden puts them back into the place where they have just come out from. That is why it is very important for us to focus on the poor people in the first instance, which is why we are focusing on our digital health mission, जहाँ starting में we will be focusing on the people who are most vulnerable, and then gradually we will try to cover the entire population. It would require privacy laws. It would require IT systems without any compromise on security and privacy. It would require health efficient mechanisms. It will require a bureaucracy that is efficient in medical knowledge and whatnot. So all those things will come gradually to the country, and we will see that the entire country will soon be covered with the health mission, maybe in 5 or 10 years yet to come. ठीक है. नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग. एंड अगेन बहुत सारा पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इज लाइक द सॉल्ट ऑफ द न्यूज़पेपर. विदाउट इट मजा नहीं आता. Okay. In a first, government approves study on status of radicalization in India. बहुत ही ज़्यादा controversial होने वाला है ये in times to come. ना होम मिनिस्ट्री ने BPRD या फिर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बोला है कि काम करो, कंडक्ट अ स्टडी ऑन रेडिकलाइजेशन ऑफ पीपल, कि इंडिया में रेडिकलाइजेशन हुआ कितना है. कारण क्या है इसका भी सुना होगा तुमने. 4-5 रोज पहले पाकिस्तान ने एक एलिगेशन लगाया था that in India we have seen shoots of ISIS as well as Al-Qaeda. Government takes terrorism very seriously. So it has been creating and conducting a study on radicalization of India, which will focus on majorly 2 topics. ठीक है. एक तो रहेगा आपका status of radicalization in India, दूसरा functioning and impact of open prisons on rehabilitation of prisoners. 2 अलग अलग चीजें हैं, बट सेकेंड वाली तो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, प्रिजन रिफॉर्म्स की स्टडी है. हम रेडिकलाइजेशन पे पहली बार फोकस करेंगे. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट टाइम विल बी फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन रेडिकलाइजेशन, एंड द वे वी विल बी लुकिंग एट रेडिकलाइजेशन विल ऑल्सो डिफाइन द वे वी विल बी लुकिंग एट द UAPA. अब UAPA है क्या? पहली बार हिंदू ने UAPA छापा है पेपर में विदाउट यूजिंग द वर्ड ड्रैकोनियन, तो तुम खुद सोच लो कि अच्छी रिसर्च रही होगी. ठीक है. UAPA इज एंटी टेररिज्म लॉ. जनरली ऐसा बोला जाता है कि इट इज यूज्ड टू टारगेट अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, although I beg to differ on that point, that UAPA is being used for targeting, and it's not that. Obviously there have been certain cases जहाँ पे हर छोटी छोटी बात पे लग जाता है, but UAPA को बहुत संभाल के यूज करती है सरकार. NSA बांट देते हैं हम लोगों में जब जरूरत पड़ती है. NSA तो बस जैसे कुछ बोल दोगे मिल जाएगा तुमको. That's why. But then if we are going to study radicalization, believe me, it's a very good approach. Start करना इसको बहुत अच्छा है, and even better is that we are not conducting it from the perspective of the government. We have asked a variety of institutions, including professors and everyone, to come onto a common platform.
हमने सारे एकेडमिक्स एंड लीगल एक्सपर्ट्स को बोला कि प्लीज गिव अस योर आइडियाज ऑन हाउ टू कंडक्ट दिस स्टडी, व्हाट वुड बी द राइट वे टू डू इट, एंड दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड मूवमेंट। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इसकी आउटकम्स इन स्टडीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो यूएनएससी में इंडिया ने बोला है इमीडिएट अफगानिस्तान सीज फायर के लिए। इंडिया के जो वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर टीएस तिरुमूर्ति, ही हैज आस्क्ड यूएनएससी मेंबर्स कि अब वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान में कंप्लीट इमीडिएट जो है सीज फायर हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं आगे क्या होता है इन फ्यूचर ऑन दिस वन। इंडिया हैज गिवन इट स्टैंड्स दैट इट्स नो लॉन्गर गोइंग टू टेक अ बैक सीट इन द Afghan negotiations, and rather it would want to come in front and would also demand the same Afghan-led, Afghan-owned peace process, as I have been emphasizing in the past. India की strategy officially when it comes to Afghanistan is that there should be Afghan-led, Afghan-owned peace process. This is what will be there. Next point is exercise Malabar comes to an end. Malabar comes to an end का मतलब क्या हुआ? मालाबार एक्सरसाइज जो दो फेजेस में हुई थी, फर्स्ट फेज जिसका बे ऑफ बंगाल एंड सेकेंड फेज जिसका अरेबियन सी में हुआ था, दैट हैज बीन एंडेड। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे दैट दिस इज अ ट्राइलेटरल, दिस यूज्ड टू बी अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विद इंडिया, यूएसए एंड जापान पार्टिसिपेटिंग। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट ऑस्ट्रेलिया आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस। सेकेंड थिंग, जैसे ही ये खत्म हो रही थी तो इंडिया थाईलैंड के बीच की एक एक्सरसाइज है कॉरपैट, ठीक है, coordinated patrolling. तो coordinate patrol exercise with Thailand was also conducted in the last phase of Malabar. So this is very important क्योंकि Thailand is also a key stakeholder when it comes to South China Sea. ठीक है, so this is very important. Now let's come on to the next page and see what is the next news. ये एक news है, government sought FB data of 57,294 users. Not really something which you should bother yourselves with. Just know the stats that हाँ हमारी रिक्वेस्ट पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रहती हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया टू टेम्परेरीली होस्ट इसरो सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटीज बिकॉज वी रियली वांट अक्रॉस द ग्लोब काइंड ऑफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। वेरी सून विल बी सेंडिंग आवर इंडोनॉट्स टू द स्पेस, ठीक है, गगनयान के थ्रू। और जब इंडियंस स्पेस में जाएंगे तो इंडिया विल बिकम द फोर्थ कंट्री टू सेंड इट्स क्रू टू द स्पेस। नाउ इफ दैट इज गोइंग टू हैपन, इन दैट केस यू शुड बी अवेयर कि मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, ह्यूमन लाइफ विल बी एट स्टेक। दिस इज नॉट द टाइम जहाँ पे हम सिर्फ एक मशीनरी या एक इक्विपमेंट को भेज रहे हैं और उसके फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ इन दिस अटेम्प्ट वी लूज आवर एस्ट्रोनॉट्स यानी कि इंडोनॉट्स, तो इन दैट केस इट विल बी अ बिग स्टेप बैक, ठीक है, बहुत बड़ा हम लोग को झटका लग जाएगा एंड वी रियली डू नॉट वांट दैट, विच इज वाई वी आर लिविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड। हम पूरे वर्ल्ड में मॉनिटरिंग स्टेशंस बना रहे हैं एंड वी विल बी ट्रैकिंग द सैटेलाइट्स एंड एवरी फैसिलिटी दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च इन द डेज टू कम। Australia also has emerged as a major partner over here. एक और चीज है, चिल्ड्रन अकाउंट फॉर 1 in 9 केसेस, यूनिसेफ ने बोला है दिस इज फॉर कोविड-19। ऐसा मत सोचना कि बच्चे हत्या कर रहे हैं लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, बट दैट न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट यूनिसेफ वाला। इन दिस पेज आई बिलीव देयर इज नॉट इवन अ सिंगल न्यूज, एक है। ओके, दिस इज डेब्यूटेंट डगलस स्टुअर्ट हैज won the 2020 बुकर्स प्राइज। इनकी किताब जो है शगी बेन that has talked about his experiences with his mother who was an alcoholic and eventually died from alcoholism. So he says that he has highlighted the point how love at times is unconditional despite the fact that you have a fractured family. That is why the book has got a Booker's Prize and Shagi Bain is the name. Author का नाम है डगलस स्टुअर्ट, स्कॉटलैंड से है, ठीक है, स्कॉटिश, स्कॉटलैंड की। चलो और भी चीज़ें प्रसिद्ध हो रही हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज आरबीआई का एक खुद का इंटरनल वर्किंग ग्रुप है IWG विच हैज गिवन फ्यू रिकमेंडेशंस। द फर्स्ट वन बीइंग कि प्रमोटर्स की जो लिमिट है, कितना पैसा वो बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाउ मच इक्विटी दे विल ओन, इसको 15 साल के अंदर बढ़ा के 26% कर देने की बात कर दी गई है, ठीक है। राइट नाउ इट इज अराउंड 15% अप्रॉक्सीमेटली, कि अगर मैंने एक बैंक स्टार्ट करी थी तो उसमें आई कैन होल्ड ओनली अप टू 15% ऑफ द स्टेक्स, बट अभी सब बोल रहे हैं कि बढ़ा के 15 साल के अंदर इसको बढ़ा के धीरे धीरे 26% कर दीजिए, सो दैट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स कैन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, मल्टीपल बैंक्स कैन कम अप। Second, in order to increase the banking efficiency, they are also saying that the NBFCs or the non-banking financial companies which are having a asset size of over 50,000 crores, उनको भी हमें बैंकिंग लाइसेंस देने के बारे में सोचना चाहिए। जब 10 साल पूरे हो जाएं तो उस टाइम पे उनको, मतलब फॉर्मेशन से 10 years, ऑपरेशन से
ऑपरेशन के 10 साल जब पूरे हो जाए उन्हें, तो उन्हें लाइसेंस दे दिया जाए बैंक का, इफ दे आर इंटरेस्टेड एंड इफ देयर कैपिटल इज 50,000 crore एंड अबव. What are NBFCs? NBFCs are those which cannot take demand deposits. डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जैसे आपका डीडी हो गया, जैसे सेविंग्स अकाउंट हो गया, ये सब चीजें, दीज आर कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स. तो ये आप नहीं ले सकते हो, ये एनबीएफसी का फीचर है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. नाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक इज ऑल्सो न्यू टर्म विच इज वेरी यूनिक टू इंडियन इकोसिस्टम. इंडियन इकोसिस्टम के लिए बहुत यूनिक है. यहाँ पे एक और टर्म आता है पेमेंट्स बैंक्स. नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड पेमेंट्स बैंक्स. पेमेंट्स बैंक्स इंडिया का एक यूनिक फीचर है जो हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शुरू किया था. नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? दैट देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस एंड अवेलेबिलिटी एट द टाइम ऑफ योर रिक्वायरमेंट एट अफोर्डेबल रेट फॉर एनी फाइनेंशियल सर्विस दैट यू वांट. रिपीट कर लेना पीछे करके वीडियो अगर तुम्हें नोट करनी हो डेफिनेशन तो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने बोला था कि पेमेंट्स बैंक बनाएंगे. सम ऑफ द पेमेंट्स बैंक्स हैव बीन डूइंग फेयरली गुड. फॉर एग्जांपल पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बहुत लोगों के अकाउंट्स भी हैं, चल भी रहा है अच्छे तरीके से. तो ऐसा कहा गया कि जब ये पेमेंट्स बैंक्स बने हैं तो इसमें 6 years का टाइम दीजिए इन्हें कि 6 years का ऑपरेशन इनका हो चुका हो या फिर 10 साल इनके कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन होगा. 6 years फ्रॉम द डेट जब इन्हें बैंक बनने के जितनी कैपिटल इनके पास इकट्ठी हो गई थी, एंड 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ऑपरेशन बिगिनिंग. तो उस टाइम तक इनको दे दिया जाए कि हाँ लाइसेंस ले लो. इनमें से कोई भी जो पहली कंडीशन मीट हो जाए उसी पे पकड़ा देंगे कि जाओ भैया करो मजे, बन जाओ बैंक, तुम स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाओ एटलीस्ट. लेटर ऑन अगर तुम और अच्छा परफॉर्म करोगे तो फ्रॉम एसएफबी यू विल बी अलाउड टू कन्वर्ट टू कमर्शियल बैंक ऑल्सो, यानी फुल फ्लेज्ड बैंक. तो ऐसे इनको एक एक्सटेंशन की बात करी है, बट देखते हैं. Since these are all recommendations of only an internal working group, we are yet to see what is going to be the outcome in total. Finally, e-commerce is ushering in faster digitization, says Amazon India. Amazon India is a key stakeholder in the e-market of India. Then there are sports page. I believe you can read them on your own depending on your interest and everything. ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ लेना, उसको तो मैं क्या ही पढ़ाऊँ. I'll just go back to the editorials and we'll try to cover them up in a bit as soon as लोड हो जाए. हाँ, लोड हो गया. नाउ इंडियाज नो टू RCEP कुड स्टिल बी अ नो. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज रिटन ओवर हियर. आई हैव हाइलाइटेड, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन. मैं तुम्हें शॉर्टकट में कुछ बातें समझाता हूँ. सबसे पहला, इंडिया ने विड्रॉ क्यों किया था RCEP से? मेनी पीपल से दैट, देखो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अब RCEP साइन हुआ तो लोगों को लगता है कि इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी. दीज आर द सेम पीपल हु वर एब्सेंट इन दीज डिस्कशंस लास्ट ईयर. बहुत पुराना डिस्कशन है, इनफैक्ट 2011-12 से नेगोशिएशंस हमारे चल रहे हैं, एंड वी रियली डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दीज. कारण क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज RCEP ऑफरिंग एंड व्हाई इज इट ऑफरिंग सो. इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मार्केट इन लेट्स से ईस्ट एशियन रीजन, जहाँ पे ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं सारे एक कोलैबोरेटेड मार्केट की तरह एक्ट करेंगे. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, देन आसियान कंट्रीज, दे आर ऑल अ स्टेक होल्डर इनटू दैट रीजन एंड दे आर ऑल विलिंग पार्टनर्स ऑफ द RCEP. अब इसके अंदर यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इंडिया विड्रू, और सिर्फ इंडिया के विड्रॉल से RCEP का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. कारण कैसे? इंडिया ने विड्रॉ कर लिया तो ऑब्वियसली एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन वाज टेकन अवे एंड अ बिग मार्केट वाज टेकन अवे. सम पीपल से दैट इफ इंडिया वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द RCEP, इंडिया को मजा आ जाता. कैसे मजा आता? इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है? डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है. उसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया चैंपियन थे. वो आके हमारे डेयरी एंड प्रोडक्ट्स की ऐसी तैसी कर देते मार्केट की. दूसरे पॉइंट पे मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए तो जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट है वो कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है. अब चाइना को फ्री एक्सेस अपने मार्केट का दोगे तो चाइना फिर से आएगा, एंड दिस टाइम अगेन योर पीपल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. देन व्हाट डू यू एक्सपोर्ट? यू एक्सपोर्ट सर्विसेज, एंड बिलीव मी, इवन टिल डेट RCEP इज नॉट वर्किंग फंक्शनली when it comes to the export of services. गुड्स के मामले में सबने कमिटमेंट्स बना रखे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे. सर्विसेज के मामले में कोई कमिटमेंट ही नहीं है. Now, if they were including services, India would have been a part of the RCEP because India कहीं ना कहीं मैनेज कर ले जाता. But since they said that RCEP को नहीं, इस टाइप की हरकत है, तो फिर ठीक है, जाने दिया. उन्होंने कहा कि ठीक है, जब सर्विसेज यू आर नॉट इंक्लूडिंग विच इज अ मेजर थिंग दैट वी एक्सपोर्ट, देन व्हाई शुड वी बी अ पार्ट ऑफ इट? जब इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है. यू विल गेट एक्सेस टू मार्केट, यू विल गेट एवरीथिंग, बट व्हाट डू वी गेट इन टर्न? दैट वाज अ मेजर क्वेश्चन. एंड ये नहीं कह सकते हो आप कि हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट आ जाती है आसियान की तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव कर सकते थे. यार मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, चाइना के पास में, वियतनाम के पास में, अदर कंट्रीज के पास में. यू शुड बिलीव दैट द फैक्ट इज, अगर आप RCEP ज्वाइन कर लेते
तो आपको एक स्टिफ कंपटीशन हैंडल करना पड़ता जो आप नहीं झेल पाते, कंपटीशन इतना हाई होता. So that is one of the major concerns that India did not sign it with. Now there are apprehensions that India had to come up with these farm bills. इसीलिए डेयरी फार्मर्स के साथ भी इंडिया पंगा नहीं लेना चाहता था, बिकॉज ये 3 बिल्स लाने ही थे जो अभी आए फार्म वाले. जिसको नहीं पता है कि मैं कौन से बिल्स की बात कर रहा हूँ, एक बार फार्म बिल सर्च करना, उसमें मैंने प्रीवियस DNDs में समझाया भी है आपको. ऑलराइट, सो दिस इज इन टोटल द डिटेल अबाउट कंप्लीट योर RCEP एंड व्हाई इज इंडिया नॉट अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, अब अगर इंडिया को RCEP ज्वाइन करना है तो यही सारे रेक्टिफिकेशन जरूरी भी हैं, एंड मैंने तुम्हें बहुत शॉर्टकट में समझा दिया है यहाँ पे. ठीक है, ये सारे जरूरी हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विदाउट दिस इंडिया इज नेवर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ, सॉरी, विदाउट इट इंडिया इज नेवर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द RCEP. एक और चीज यहाँ पे याद रखना, इंडिया इज नाउ फोकसिंग ऑन दिस आत्मनिर्भर भारत. इट इज अबाउट स्ट्रेंथनिंग इट्स ओन सप्लाई चेन, जबकि RCEP या कोई भी और FTA हो वो हमेशा ग्लोबल सप्लाई चेन्स को इंप्रूव करने की बात करता है. इंडिया फर्स्ट वांट्स टू इंप्रूव इट्स ओन डोमेस्टिक वैल्यू चेन, thereafter it will be a part of the global supply chain. That is going to be the future of RCEP in India. Now let's come on to this part. This is time use survey as an opportunity lost. टाइम यूज सर्वे में क्या होता है, पूरे दिन में आप क्या करते हो, अपना टाइम किस एक्टिविटी को देते हो, ये कैलकुलेट करते हैं. सुबह 4 बजे से अगले दिन के सुबह 4 बजे तक 24 आवर्स का ब्रैकेट होता है, उसमें डायरी में आपको एंट्री करनी होती है. ग्लोबली यू आर मेकिंग योर ओन एंट्रीज. इन इंडिया पीपल आर नॉट लिटरेट इनफ, दैट इज व्हाई इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है और आपकी डिटेल्स एंटर करता है. जैसा भी एक लेबरर है, उस बेचारे को लिखना ही नहीं आता, तो उसके लिए वो इंटरव्यूअर जो है वो एंट्री करेगा, पूछेगा कि भाई आपने सुबह से शाम तक किया क्या. दिस इज टाइम यूज सर्वे. इट हैज कम आउट ऑफ दिस इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है आपका, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबर स्टैटिस्टिक्स, उसके दरमियान ऐसा 2013 में एग्री किया गया था कि अ सर्वे विल बी कंडक्टेड. Now, Government of India is fully committed, and commitment is towards the Sustainable Development Goals, जहाँ पे we are trying to improve the quality of life for the labor force also. So we did it. Now, there are few problems associated with this. First of all is that in India unpaid work नहीं count करते हैं. Unpaid work ऐसे जो domestic कोर्स वगैरह में औरतें अपना टाइम देती हैं वो, thereafter you will see कई लोग बेगार करते हैं. बेगार as in come work for me और जाओ, बस एक हो गई बात. वो होता है ना अग्रीमेंट्स जो वर्बल वाले रहते हैं, तो ये सब चीज़ों में उन्हें पेमेंट वगैरह कुछ मिलता नहीं है. दैट इज वाई दीज आर अनअकाउंटेड फॉर. नाउ देयर आर 2 वेज ऑफ काउंटिंग एनी काइंड ऑफ ये अनपेड वर्क. जो जनरली हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसके अंदर हम जनरली ये तो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इसको एक सैलरी मिलनी थी. फॉर एग्जाम्पल, विमेन इफ दे आर वर्किंग इन द किचन, वी विल से दैट विमेन वर एक्सपेक्टेड टू गेट पेड, बट वी विल नॉट टेक इन टू अकाउंट कि भाई किचन में काम करने में शी वॉज ऑल्सो यूजिंग सम रिसोर्सेज, लाइक शी यूज्ड गैस, she used the utensils, she used oils, she used vegetables and everything, and all of this is a cost that was incurred in that production process. So those are not taken into account. एक और मेथड होता है सैटेलाइट अकाउंटिंग का, उसके अंदर ये सब चीजें भी हम इंक्लूड करते हैं. नाउ ILO ने रिसेंटली वर्क की एक नई डेफिनेशन क्रिएट करी है. तो वर्क को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इन्होंने. एम्प्लॉयमेंट, ओन यूज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड, अनपेड ट्रेनी वर्क, आधे इंटर्न्स का दुख यहीं पे नजर आता है, वॉलंटियर वर्क या NGO वगैरह में जो काम करते हो आप, एनी अदर वर्क विच इज लाइक कंपल्सरी वर्क विच हैज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट पे. आप जैसे तुम ऑफिस से निकले, तुम्हारे बॉस ने बोला एक कॉफी ले मेरे लिए, तुम दौड़ के गए कॉफी ले आए, बट डोंट यू थिंक दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ योर जॉब, एंड इफ यू आर डूइंग इट यू शुड बी पेड फॉर इट. तो दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग. ये सब चीजें टाइम यूज सर्वे जो होता है ना, तुम्हें केवल एक एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी बताता है. अगर पूरी स्टोरी जान लिया तो यू विल हैव टू गो फॉरवर्ड विद द EUS. EUS इज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे. इंडिया में डिसकंटिन्यू हो चुका है, उसकी जगह वी हैव कम आउट विद अ बेटर वर्जन ऑफ इट. ठीक है, वर्कफोर्स सर्वे अब जो है एक नए टाइप का होता है. सुना होगा तुमने, लास्ट ईयर आया था जब बोला गया था इंडिया में 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हाईएस्ट इन 45 ईयर्स. ऑल्दो दैट वाज कंट्रोवर्सी फॉर द सेक ऑफ कंट्रोवर्सी, बिकॉज सरकार ने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया. फॉर्मूला चेंज किया तो अनएम्प्लॉयमेंट बेहतर तरीके से कैलकुलेट होने लगा, तो नंबर्स हाई हो गए. वी विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट कंट्रोवर्सी, बट द फैक्ट इज दैट वी हैव डन अवे विद दैट. नाउ अगर आपको टाइम यूटिलाइजेशन सर्वे या टाइम यूज सर्वे को अच्छे तरीके से यूज करना है, तो आपको सही तरीके से उसे कपल करना पड़ेगा आपके वर्कफोर्स सर्वे या फिर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के साथ में. इफ यू आर एबल टू डू दैट, यू विल बी एबल टू रियलाइज रैशनली कि आपकी वर्कफोर्स कहाँ कब कितना टाइम दे रही है, एंड हाउ यू कैन यूज इट इन अ बेटर मैनर. ठीक है, नाउ SDG 5.4 और ILO के जो भी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस है, अगर आपको उन्हें इंप्लीमेंट करना है, तो इन दैट केस यू रियली विल हैव टू एंश्योर दैट ये सर्वेस का डेटा सीरियसली लिया भी जाए
और उसे आगे आने वाले पॉलिसी फ्रेमवर्क में इम्प्लाई भी किया जाए। ग्रुप के थ्रू या चैट के थ्रू या मे बी कॉमेंट्स के थ्रू बता देना कि इफ यू लाइक द न्यू फॉर्मेट, बिकॉज सी 29 मिनट्स एंड वी आर डन विद द DND। वरना क्या होता था, 1.5 घंटा खिंचता था इसी सारे डिस्कशन में। आई यूज्ड टू टेल यू द सेम थिंग्स। Since cross talks and chit chats are not happening over here, you can see that the time efficiency is pretty high. Now you can let me know whether you want me to continue with this or should I continue with this. Don't worry, I'll take into account any feedbacks you are granting. अगर लगता है आप लोग को कि दूसरा format would have been better, so we'll go with that. ठीक है? Take care. जय हिंद.